After the midterm exam. Today is lecture number 21, and before the midterm exam, we discussed about the uh, group delay, phase response, phase distortion, and roughly sketch the magnitude response of a system. The third important topic of your chapter number 5 is the all pass and minimum phase system. And in the very next topic, we'll see that what is the actual use of all pass system. All pass systems can be defined in multiple ways. The basic definition is it is a kind of system that allows all content to pass without blocking any specific content of the input. So all pass system, as the name indicated, that it is kind of a system that allows everything to pass. It is not blocking anything, and it allows to pass everything, right? So from this definition, we can also define this as all pass filter. So there is another term known as, it is also known as all pass filters. So all pass filters, why we call it all pass filter? Because that filters are blocking something and passing something. So in that context, it is kind of a filter that is allowing all frequency content to pass. So in that context, we can redefine it that it is a kind of system that allows all frequency component to pass, right? So from this definition we can infer that ये इस तरह का system होगा जो सारी frequency components को pass करे, right? So from this definition we can infer that it is a kind of system which have a constant magnitude response. So let me draw the, so we can say that it is a system with constant magnitude and linear group delay response. Let me draw this. So let me draw another line, this one. Let me make it a little bit bold, green, and let me increase the weight, this one. And let me use pen to draw the x and y axis. So I would say that this is your frequency axis, and this is h e to j omega mod. So this is magnitude plot is passed, so it is allowing all frequencies from 0 to highest frequency, all frequencies is passing through this system and no frequency is blocked. And what about the phase response? If we see the phase response of this system, because in the very first topic of chapter number 5 we were stressing over the phase response. So let's talk about the phase response of a system, phase response of all pass system. So if we define the phase response of all pass system, so it will look like this. So it will control C, control Z. It will be look like it's a linear decay passing through the origin, right? So we can fix like this, like this. So this is the phase response of a system. So let me draw the x and y axis again. So this is your omega, and this is angle of h e to raised per j omega. So we can say that all pass systems are those systems, or all pass filters are those filters which have a constant magnitude response and a linear phase response. So we redefine all pass system.
through another definition like this: all pass systems are those kind of systems which have constant magnitude response and linear phase response. Right, so from here we can say, let me bold this as well, constant or flat magnitude response and linear phase response. So we can define this all pass system in this way. How we can find the Z transform expression for all pass system? So let me write the Z transform expression. Z transform expression for all pass system. So let me write Z transform expression. So insert equation. So I can write Z transform Z, and let me write AP. AP stands for all pass in the subscript. I make it sorry, Control Z. So it would be like this: all pass of Z equal to Z inverse minus C conjugate over 1 minus C Z inverse. Z inverse minus C conjugate. There is some symbol of conjugate, I guess. This one. Z inverse minus C conjugate. Let me put it here. Over 1 minus C Z inverse. So this is the standard form of all pass system. If you see your book, your literature, everywhere you will find this standard form. Let me zoom it for further clarity. So this is the standard form of all pass system: Z inverse minus C conjugate over 1 minus C Z inverse. This shows that if this expression shows that if there is a pole, let me say inside unit circle, because you know that if pole is going outside unit circle, it would become unstable, right? Are you with me? Yes, sir. Okay, so if the pole is going outside the unit circle, your system would become unstable, and that would make your system useless. So that's why I'm putting inside unit circle in the bracket. So this expression shows that if there is a pole inside unit circle at C, at position Z is equal to C, then there must be a zero, at 1 over C conjugate. What does it mean? It means that if you want to make a all pass system, so you can make all pass system using Z transform expression by exploiting this HAP of Z, and this expression is saying that if there is a pole at C, there must be a zero at 1 over C, right? I'll explain that expression with two examples as well, but let's first look at the magnitude and the phase response. So from the magnitude and phase response, we can see that this is some kind of a system which have a flat magnitude response and linear phase response. So from here, one obvious question comes in our mind, that what is the use of this system? It's like a buffer. Are you familiar with the buffer? Role of buffer? Yes, sir. So what is the role of a buffer? So it is usually used to give some delay, sir. Yeah, it just passing everything, just giving certain delay. So what in connection to the
buffer. All pass system is looks similar, not same but similar. So it's passing everything. It's not blocking everything. So what is the use of this system? Obviously, from discussion till now, we can say that it is some kind of system that is allowing all frequency component to pass, and it may not be very useful. But I'll show in the very next topic, which is the decomposition of a given system into all pass and minimum phase system. And there I'll explain that the all pass system has a very key role in defining the inverse system. I think you are familiar with the inverse system. Inverse system क्या होता है? जैसे multiply का inverse क्या होता है? Divide. Plus का inverse क्या होता है? Minus, right? So inverse system is exactly the opposite system. So in many application of signal processing and communication, especially in wireless communication, you need inverse system because आपने noise को cancel out करना होता है, and that is doing the inverse system. How many of you are familiar with the word or term equalizer? Anyone knew about the term equalizer? सर इक्वलाइजर हमारे ऑडियो सिस्टम्स में भी अवेलेबल होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में भी, रियल टेक में अवेलेबल होते हैं सर। ये हमारे डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे बेस, ट्रेबल, वोकल, इस तरह के साउंड कंट्रोल कर रहे होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को एक टाइम पे बूस्ट करें या किसी एक को कम कर दें। Exactly. Normally, in communication domain, we use equalizer is a device or it is a component in your cell phone, for example, that basically model the channel environment and the noise environment and then create the inverse system. और जो आपके पास डिस्ट्रॉशन आपके सिग्नल के अंदर आ रही है या नॉइज आ रही है उसको अनडू करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम इक्वलाइजर यूज करते हैं. So we will see a very critical role of all pass system in designing the equalizer in the very next topic, right? So for time being, just you need to know that what is the all pass system, how the magnitude response of all pass system look like, and how the phase response of a all pass system looks like, right? And this expression is really important. H all pass of Z inverse minus C conjugate over 1 minus C Z inverse. And this expression, अगर हम इसको expression को देखें और if we look this expression carefully, we can say that this expression saying that if there is a pole at C, there must be a zero at 1 over C conjugate. So let's take an example to further clarify the concept. So example number 1. So let me draw all pass system and then I'll try to explain what does mean by a pole at C and 0 at 1 over C conjugate. So let's consider this because we are talking about Z transform. So we need to draw a unit circle. So let's boundary by this and no fill, and let me take axis. This is your y axis. This is your x axis. And let's draw a pole at inside unit circle. Keep in mind I use the word inside the unit circle. So let's draw a pole at 0.5. If there is a pole at 0.5, so let it mean that C equal to 0.5. So 0 फिर बाहर आ जाएगा ना? So this is the location of a pole. So pole is at 0.5. So for 0, there must be a 0. There must be a 0 at 1 over C conjugate. So 1 over C conjugate would be 1 over 0.5 conjugate. So real का conjugate आपके पास क्या होता है? Same number आ जाता है 1 over 0.5. So what about 1 over 0.5? What is the value of 1 over 0.5? 2, sir. It's 2. So it's mean that in order to make this system all pass system, we just need to go and place a 0 at Z equal to 2. So now this would become an all pass system. So we can write that this is all pass of Z. How you write the expression? Since you satisfy this condition, so you can write the expression very easily like this, that all pass of Z would be Z inverse. The important is location of C. C conjugate. So what is the value of C? C is 0.5. So I need to write 0.5 conjugate over 1 minus 0.5 Z inverse.
So this is the standard form of all pass system. Any confusion? No, sir. Any confusion? Okay, let's take another example. If someone have any confusion, he or she can ask the question. Otherwise, we can proceed to the next example, example number 2. Okay, let's take another example, little bit, and I would like to clarify another concept through example number 2. So let's assume we take the same system, but now our zero is not lying on real axis, but rather it is lying on the complex axis. How? Let's clarify through this example. So let's take, this is your y-axis, this is your x-axis. Let me draw a pole at, let's take it is 0.5 but it is angle pi by 4. So let me say that it is c is equal to 0.5 e to raise power j pi by 4. Right? So its magnitude is 0.5 and its angle is pi by 4. Keep in mind that a complex pole or zero cannot exist alone in complex plane. आपका जब भी कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगा जहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड और फेज दोनों चाहिए होंगे, एक्स एक्सिस के अलावा जहाँ पे भी आपके पास पोल या जीरो आएगा, सो दे मस्ट एग्जिस्ट इन पेयर, दे मस्ट एग्जिस्ट इन पेयर. ये बात समझ में आ रही है? फॉर कॉम्प्लेक्स पोल्स एंड जीरो दे मस्ट एग्जिस्ट इन पेयर. ठीक है बेटा? ये लोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट. जी सर. अगर हम ऑल पास सिस्टम बनाना चाहें, so if the zero is pole is at 0.5, so what is the location of zero? Zero की लोकेशन क्या हो जाएगी? 1 over c conjugate, so it would be 1 over 0.5 e to raise power j pi by 4 conjugate. ऐसे ही है बेटा? Yes, sir. सो अगर आप इसको देखें तो आपके पास ओपन करके देखें तो आपके पास आ जाएगा 1 over 0.5 e to raise power minus j pi by 4. जब कंजुगेट लेंगे तो इट वुड बिकम minus j pi by 4. ऐसे ही है? जी सर. सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. ऐसे ही है? और ये 1 over 0.5 मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 e to raise power j pi by 4. एग्री करते हैं? सर ये 1/0.5 e की पावर माइनस जे पाई बाई 4 जो आपने लिखा है ये ज़रा बता दें. ये कॉन्जुगेट लेंगे, कंजुगेट लेंगे तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ये आ रहा है, ये तो रियल है, तो यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दिया, बट स्टिल इट इज इन डिनोमिनेटर. तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में जब लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाए. अब अगर हम इस जीरो को एनालाइज करें तो देखेंगे हमारे पास एंगल सेम है. यहाँ पे भी पाई बाय 4 था, यहाँ पे भी पाई बाय 4 है, लेकिन आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या हो गया? वो चेंज हो गया. पहले 0.5 था, अब क्या हो गया? 2 हो गया. इसका मतलब यह है कि अगर मैंने ऑल पास सिस्टम बनाना है तो मुझे एग्जैक्टली 2 पे जाके सेम एंगल के ऊपर जाके मुझे एक जीरो क्रिएट करना पड़ेगा. राइट? सो क्वेश्चन, does this represent an all pass system? Although it is satisfying the condition of all pass system, but as I said earlier, the complex poles and zeros they can't exist alone in complex plane. तो अलहदा से complex plane में exist नहीं करते, वो conjugate pair बनाते, वो conjugate pair बनाएंगे. So in order to make this a complete all pass system, तो हमें इसके conjugate pair बनाना पड़ेगा. And how we can make conjugate pair? Let me make it with black color. So आपको intentionally ये वाला पोल खुद क्रिएट करना पड़ेगा. So let's call it C1, 1 over C1 conjugate. So what is the value of C2? It is 0.5. magnitude is same but angle is minus j pi by 4. एग्री करते हैं बेटा? इसका एंगल क्या हो जाएगा? जी सर. It would be minus pi by 4.
So what is the this is pole at C2, and what is the zero for C2? Zero के लिए हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी 1 over C2 conjugate. तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 over 0.5 e to raise power minus j pi by 4. अब हम इसका कंजुगेट लेंगे, माइनस का कंजुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. ऐसे ही है बेटा. यस सर. जी. तो आपके पास आ जाएगा 1 over 0.5 e to raise power j pi by 4. जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 e to raise power minus j pi by 4. अगेन आप अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे एंगल सेम है, बट आपके पास 0.5 किस में कन्वर्ट हो गया 2 के अंदर. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने इसका पैरेलल सिस्टम इसको कंप्लीट ऑल पास सिस्टम बनाना है तो हमें एक और जीरो लगाना पड़ेगा सेम एंगल के ऊपर बट एम्पलीट्यूड ऑफ 2. सो नाउ दिस इज अ कंप्लीट ऑल पास सिस्टम. एग्री करते हैं बेटा? सर ये ज़रा बता देंगे आपने जी जो सर. दूसरा ये किस लिए लिया सर? why we take because अगर हम ओरिजिनल सिस्टम देखें तो हमारे वी आर गिवन ओनली अ पोल, रेड पोल. ऐसे ही है ना बेटा? हमारे Yes, पास sir. सिर्फ रेड पोल था, हमने इसको ऑल पास सिस्टम बनाना है. सो हमने सिर्फ ये रेड वाली जो हमने वर्किंग किया है दैट वुड बी इनफ. लेकिन हमें ब्लैक पोल और ये ब्लू हमें जीरो ये खुद से एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ा. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस. लेट मी यूज ब्लू की बजाय हम क्या यूज कर लेते हैं ग्रीन. जीरो के लिए ग्रीन कर लेते हैं. तो हम ये ग्रीन जीरो और ये ब्लैक पोल ये हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किया है. इसकी रीज़न बेटा ये है कि ये कॉम्प्लेक्स अगर अलोन एग्जिस्ट करेंगे तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन होंगी सिस्टम के अंदर वो कॉम्प्लेक्स होंगे. आपको पता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होती है तो क्या होता है आपके पास यू नीड 4 मल्टीप्लिकेशन एंड 3 एडिशन. ऐसे ही है ना बेटा? आप Yes, e to sir. raise पर माइनस जे पाई बाय 4 को ओपन करेंगे तो इट वुड बिकम cos माइनस पाई बाय 4 और प्लस जे माइनस साइन पाई बाय 4. ऐसे ही है. Sir. So your Yes. multiplier would be highly complex. So in order to make the multiplier or coefficient real, अगर हम कोफिशिएंट या मल्टीप्लायर रियल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी पोल्स हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर या जितने भी जीरोस हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर वो अकेले ना एग्जिस्ट करें बल्कि वो पेयर में एग्जिस्ट करें और वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करें. कॉन्जुगेट का मतलब यह है कि उन दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड. पोल्स की बात कर रहा हूँ लेकिन एंगल उनका अपोजिट हो जाएगा. जैसे रेड पोल और ब्लैक पोल को देखें तो इनका मैग्नीट्यूड 0.5 है लेकिन एंगल डिफरेंट है. एक का पाई बाय 4 है, दूसरे का माइनस पाई बाय 4. सेकेंडली ऑल पास सिस्टम बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हर पोल के करस्पॉन्डिंग उसके कंजुगेट रेसिप्रोकल के ऊपर एक जीरो हो. तो वो हमने दोनों केसेस में C1 और C2 हमने निकाल लिए और हमने वहाँ पे ये प्लेस कर दी. ठीक है बेटा? Yes, sir. जी सर. Any confusion? So if sir. you have no confusion, then anyone of you from your side can help me to write the expression for this system. Because अब ये complex पोल बन गया तो अब आप देखें आपके पास दो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में आएंगे, दो आपके डिनोमिनेटर में आएंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 वुड बी वेरी सिंपल. उसके अंदर हमारे पास देखें आपके पास सिर्फ एक पोल एग्जिस्ट कर रहा था तो हमने इसको लिख दिया 1 माइनस 0.5 z इनवर्स z माइनस 0.5. तो कैन एनीवन हेल्प मी टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस सिस्टम? एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा. सर अगर कॉम्प्लेक्स पोल और जीरो अगर यूनिट सर्कल के अंदर लाई करते हैं तो फिर तो हमें ये क्या नाम है कंजुगेट पेयर तो नहीं बनाना होगा ना? अगर यूनिट सर्कल के नहीं फॉर व्हाट देयर आर टू कॉन्सेप्ट. वन इज के जो कॉम्प्लेक्स डोमेन में प्लेन के अंदर जीरोस या पोल्स हैं वो अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकते, वो हमें पेयर बनाना ही बनाना. और दूसरा जो ऑल पास सिस्टम है उसके लिए डिफरेंट कंडीशन है. वो कंजुगेट रेसिप्रोकल के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो क्रिएट करना पड़ेगा हर पोल के लिए जो यूनिट सर्कल के अंदर. ठीक है. ठीक है. तो ये दोनों चीजों को मिक्स अप नहीं करना. ओके सर. क्लियर है बेटा? जी अब सर क्लियर हो गया.
अब मुझे बताएं बेटा इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? सर इसके दो आएंगे ना एक्सप्रेशन सर, इसके दो आएंगे एक बिल्कुल जी इनवर्स माइनस 0.5 और जी इनवर्स प्लस 0.5 इस तरह करके। एग्जैक्टली, लेट मी राइट द एक्सप्रेशन हियर ताकि हम पोल और जीरो की लोकेशन को सामने ही हम एक्सप्रेशन लिख सकें। तो एच ऑल पास ऑफ जी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो अब सबसे पहले आप क्या करें, इसके लिए बेहतर है आप पहले पोल्स की लोकेशन लिखें। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 since we have two poles, so let me write here 1 minus 0.5 e to raise power j pi by 4 z inverse, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 1 minus 0.5 e to raise power minus j pi by 4, और इसके साथ z inverse भी आ जाएगा। ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, z इनवर्स माइनस c कॉन्जुगेट। तो c कॉन्जुगेट पहले के लिए क्या आ जाएगा, 0.5 e to raise पर j pi by 4, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। और दूसरा एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा z इनवर्स माइनस 0.5 e to raise पर माइनस j pi by 4 कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा? जी सर। Let me rewrite the expression in Microsoft Equation Editor clearly, ताकि आप जब घर जाके दोबारा देखें तो you never get confused. So let me copy the equation from upper side, this one. So this is the standard equation. So I just taking this in mind, this one. So what I'm trying to do is 1 minus 0.5 e to raise power j pi by 4. Pi I need to take pi from here, pi by 4, right? So let me take this. So let me take this e to raise power j pi by 4, इसको हम superscript में ले। So this is our first pole, right? ऐसे ही है बेटा? जी सर। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दूसरे में हमारे पास जो पोल है दैट इज सिंपली दी कंजुगेट, तो यहाँ पे हम माइनस डाल लें। ठीक है, अब ये हमारे दोनों पोल्स एग्जिस्ट हो गए। अब हमने एक्सप्रेशन लिखना है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर, कंट्रोल सी एंड रिप्लेस इट विद सी, राइट? सो दिस इज योर जीरो एट एंगल पाई बाय 4 ऊपर वाले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एंड जो आपका जीरो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वी जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट दिस, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, and we just need to put minus sign. So now this expression is complete. This one, now the expression is complete. Any confusion from your side? नो सर। नो तो सर। चलें, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल 3, आपने मुझे सोल्यूशन इसका निकाल के देना है। एग्जांपल नंबर 3, लेट मी ड्रॉ सिस्टम। मैं आपको सिर्फ 2 जीरोस पोल्स दूंगा, बाकी आपने इसको कंप्लीट ऑल पास सिस्टम बनाना है। This one. This one. So let me give you one pole. Let me use red again. आपके पास एक पोल आ रहा है फॉर एग्जांपल -0.8 पे, और एक पोल आपका एग्जिस्ट कर रहा है लेट मी, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और एक
बस आई एम गिविंग यू जस्ट दीज टू पोल, और जो ये वाला आपके पास पोल लाई कर रहा है इसको आप कह सकते हैं दिस इज एट 0.6 मैग्नीट्यूड है, एंड एंगल इसका आ रहा है e टू रेस पर j 3 पाई बाई 4। आपने इसको कंप्लीट ऑल पास सिस्टम बनाना है। इसको कंप्लीट ऑल पास सिस्टम बनाएं और इसका जो एक्सप्रेशन है जी डोमेन में वो आप काइंडली लिखें। लिख सकते हैं? सर जो आपने लिखा हुआ है वो 0.8 पर है। 0.6। अच्छा ये वाला 0.8 है, इसका मैग्नीट्यूड 0.6 है, और ये जो रियल एक्सिस पे है इसका 0.8 है। ये पूछ रहे हैं बेटा आप? यस है, वो क्लियर हो गया। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस सिस्टम। you have 2 minutes, you have 3 minutes, it's 11:02। तो सर रियल के लिए तो हमारे पास यानी कि एक ही वो बनेगा ना, रियल के लिए एक बनेगा, लेकिन आप भी क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो उसकी इमेजिनरी मैंने के लिए आपको दो। रीजन बता दिया है। जल्दी से अकॉर्डिंगली ये सॉल्व करें, देन आई विल कम बैक एंड एक्सप्लेन अबाउट इट। जी बेटा, किसी ने सॉल्व किया? यस सर, बस हो गया सर। कर रहे हैं सर। So let me write first poles. We are given C1, it is 0 minus 0.8, C2 हमें given है 0.6 e to raise per j 3 pi by 4। Since we cannot place complex pole alone, so हमें C3 खुद से create करना पड़ेगा। We create C3 as C3 हमें कैसे बनाना पड़ेगा? 0.6 e to raise पर minus j 3 pi by 4। ऐसे ही है बेटा? यस ऐसे ही सर। है बेटा? What about zeros? So Z1 हमारे पास आ जाएगा, तो you can call it P1, P2, P3। So Z1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 over C1 and that is 1 over conjugate।
तो -0.8 कंजुगेट, तो रियल का कंजुगेट सेम वही आ जाता है, तो इट वुड बी 1/-0.8। तो डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? 1/8 -1.25। -1.2। What about Z2? That is 1/C2 conjugate 1/0.6 e to raise per j 3 pi by 4 conjugate। कंजुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/0.6 और e टू रेस पर -j3 पाई बाय 4। तो अब ये क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/0.6 कितना होता है? 1.66। 1.66 e raised by j 3 pi by 4 आ जाएगा। 1.66 e टू रेस पर j3 पाई बाय 4। अगेन देखेंगे एंगल आपके पास सेम है, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो गया है? 0.6 से 1.66 हो। So what would be the Z3? Z3 would be, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, Z3 would be equal to 1/0.6 e to raise power minus j3 pi by 4 conjugate। conjugate से क्या होगा? It would be 1/0.6 e to raise power j3 pi by 4 और फिर ये बस ऊपर साइन का जाके डिफरेंट आएगा ना। 66 e to raise power minus j3 pi by 4। ठीक है बेटा? ऐसे ही ऐसे। यस सर। अब एक्सप्रेशन हम पहले यहाँ पे we write with the pen and then I'll write with Microsoft Editor as well. So h all pass of z, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 पोल आ रहे हैं, तो पहला आ जाएगा 1 + 0.8, क्योंकि माइनस है तो 1 + 0.8 z इनवर्स। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 सर ये रियल माइनस, वाला क्या है ना, 1 प्लस वाला। ये रियल वाला है, 1 + 0.8 z इनवर्स। ठीक। दूसरा आ जाएगा 1 - 0.6 e टू रेस पर j3 pi by 4 z इनवर्स। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 - 0.6 e टू रेस पर j3 pi by 4 z इनवर्स, और ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही है बेटा? यस सर ऐसे ही। और यहाँ पे आ जाएगा z इनवर्स, माइनस ही कंजुगेट था, तो अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 0.8 कंजुगेट। दिस इज योर रियल 0। और दूसरा आ जाएगा z इनवर्स -0.6 e टू रेस पर j पाई बाय 4 पॉजिटिव के साथ इसका कंजुगेट। और फिर थर्ड में आ जाएगा z इनवर्स -0.6 e टू रेस पर -j पाई बाय 4 इसका कंजुगेट। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, यहाँ पे 1.66 क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे फिर भी हमारे पास 0.6 आ रहा है। तो अब फॉर्मूला में देखें तो वहाँ पे c का कंजुगेट आ रहा है, तो जो वैल्यू c की है वही आएगी। वो 1.6 इस एक्सप्रेशन के अंदर ऑलरेडी एम्बेड है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये क्लियर है? ये बात क्लियर है बेटा? सर ये e raised by j 3 pi by 4 आएगा ना, आपने 5 by 4 लिखा हुआ है सॉरी, कहाँ पे बेटा? अच्छा ठीक है, इट्स 3 pi by 4। डिनोमिनेटर। दिस इज 3 pi by 4, इट्स 3 pi by 4। ठीक है। जी सर। So hopefully with these 3 examples you are able to write the all possible complex expression for this all pass system। और आप कोई भी ऑल पास सिस्टम एग्जांपल 1 2 3 इन तीनों में से आपसे कहा जाए कि ऑल पास सिस्टम का मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पांस ड्रा करें, तो वो तीनों का सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? दे हैव अ मैग्नीट्यूड फेज रिस्पांस, फ्लैट फेज रिस्पांस और मैग्नीट्यूड रिस्पांस एंड द लीनियर फेज रिस्पांस, तीनों एग्जांपल का। ये बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है, कोई भी ऑल पास सिस्टम है उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस फ्लैट होगा और फेज रिस्पांस लीनियर होगा। क्लियर? सर एक दफे इसका आंसर दिखा देंगे, ये जो एंड पे निकाला ऑल पास का जो इक्वेशन है ये। जी 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 बेटा, इफ यू वांट आई कैन राइट, लेट मी राइट इट विद सर ठीक है, क्लियर है वो, बस एक दफा देखनी तो मैच कर रहा है। ठीक है ये ले। सर एग्जांपल 3 जरा दिखा दें फाइनल। जी बेटा, आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है, कुड यू प्लीज स्पीक लिटिल बिट लाउडर?
सर मैं कह रहा हूँ वो बस ठीक है, ये 1 मिनट रहने दे, ये आखिरी ये लिख रहा हूँ ठीक है इक्वेशन। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मैंने ये जो सॉल्व किया था ना, इस तरह किया था कि रियल का निकाल के ना फिर उसका एक्सप्रेशन लिखिए, फिर नेक्स्ट वाले के जो दो हमने अलग अलग नए कंजुगेट पेयर बना के ना उनके अलग अलग निकाल के हर एक के अलग अलग एक्सप्रेशन लेके ना लिख के एंड में उन्हें कंबाइन कर दिए। उस तरह एन पे भी सही है मल्टीप्लाई ना? कर दें, वो भी सही है। यस अगर सर, आप इसको इस मल्टीप्लाई। तरह लिख के लेट्स अज्यूम हमारे एक पोल और एक जीरो को कंबाइन कर लें, उसको आप कह देंगे दैट इज E1, और फिर दूसरे पोल को आप पोल और जीरो को करें उसको एक्सप्रेशन E2 कह दें, और तीसरे को करें और आखिर में E1 डॉट E2 डॉट E3 करेंगे, फिर भी आपका आंसर ट्रू होगा। ठीक है सर, उसी तरह आंसर आया है। ओके सर। ठीक है, दैट वुड आल्सो बी ट्रू, कंसिडर ट्रू। ठीक है बेटा। जी सर। Okay, next topic is minimum phase system. Let me move to the next topic. Wait a minute. Next topic is minimum phase system. जैसे नाम से क्लियर है कि इसका फेज जो होगा वो मिनिमम होगा, राइट? बट लेट्स सी इट फर्स्ट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. Let me make it little bit bold, underline, so it's a new topic, minimum phases. For causal and stable system, we define a condition and we set a condition for a causal and stable system. किसी को याद है? Before jumping to, let me call it MPS, minimum phase system, before jumping to MPS, let's discuss causal and stable system first. Anybody remember about the condition we defined for all for causal and stable system in chapter number 3? यस सर। सर मेरे ख्याल में वो जो जी था वो लाइक करता है बी में ए और बी के बीच में। Yes, but we define a single condition जिसमें हम दोनों चीजों को टेस्ट कर लेते थे. Condition for causal and stable system. There is only one condition. If all poles of a system lies inside unit circle, that system is considered to be the causal and stable system. एक तो ये है कि आप अलग-अलग कॉजेलिटी की टर्म चेक करें और स्टेबिलिटी की अलग से टर्म चेक करें. That is also fine, but we can check both of these condition in a under single condition, and that is we just need to check whether its poles, all poles lies inside the unit circle or not. For example, let me give an example. हम एक example ले लेते हैं. We need to draw axis, so हम axis draw कर लेते हैं. Right, so let me draw poles inside this. तो अगर हमारा एक पोल यहाँ पे लाई कर रहा है, एक पोल हमारा बिल्कुल यहाँ पे लाई कर रहा है, और बाकी हमारे one pole is lying here, one pole is lying here, zero might be 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 lying here. दो जीरो बाहर जा रहे हैं, दो जीरो यहाँ पे आ रहे हैं. This is a causal and stable system. This is the example of a causal and stable system. Agree करते हैं बेटा?
since all जी सर poles of above system are inside unit circle, so it is considered to be a causal and stable system. ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? जी सर जी सर So say condition for a minimum phase system. What is the extra condition for minimum phase system? If all poles plus zeros lies inside unit circle, that system is considered to be the minimum phase system. So this is the first definition of a minimum phase system, that a system whose poles plus zeros lies inside the unit circle is called a minimum phase system. Parity हुई बेटा? जी सर 1 मिनट बस लिख लें तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ऊपर वाला सिस्टम कंसिडर किया हुआ है ये कॉजल एंड स्टेबल तो है बट इट इज नॉट अ मिनिमम फेज सिस्टम. ऐसे ही है? इट्स लाइक दैट? जी सर Yes, sir. ग्रेट. क्योंकि जीरोस आउटसाइड द यूनिट सर्कल है ना इस वजह से बिकॉज इसके 4 जीरोस आउटसाइड द यूनिट सर्कल हैं एंड दैट मेक्स दिस सिस्टम not a minimum phase system. So what is the example of a minimum phase system? So let's take an example. फिर हम इसका एक्सप्रेशन भी लिखते हैं और फिर हम मिनिमम फेज सिस्टम की एक दूसरी डेफिनेशन भी लिखूंगा अभी जो आपको समझ आ जाएगी. ओके लेट सर मी. एक्सक्यूज मी जी बेटा. सर वो जो कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम है उसमें भी तो सारे पोल्स यूनिट सर्कल में है, इसमें भी हैं, तो फिर ये क्यों कॉजल एंड स्टेबल नहीं? इसकी रीजन ये है बेटा कि वहां पे सिर्फ पोल्स पे कंडीशन है, यहाँ पे पोल प्लस जीरोस दोनों पे कंडीशन है कि इसके पोल्स भी यूनिट सर्कल के अंदर आने चाहिए, जीरोस भी यूनिट सर्कल के अंदर आने चाहिए. कॉजल एंड स्टेबल के ठीक. लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि उसके सिर्फ पोल्स होने चाहिए, जीरोस यूनिट सर्कल के बाहर भी चले जाएं तो कोई इशू नहीं है. लेकिन ठीक है, मिनिमम फेज ठीक सिस्टम के लिए जरूरी है कि उसके पोल्स एंड जीरोस जो हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर ही लाई करेंगे. ठीक है सर, थैंक ठीक है? यू. लेट मी draw axis. Okay, there are multiple lines. Wait a minute. Let's take it as x-axis. So, but let's first clarify the concept graphically. फिर हम इसका mathematically expression भी लिखते हैं. So, let's. So अगर हमारे पास एक सिस्टम है like this, पोल यहाँ पे है, पोल यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है, पोल यहाँ पे है, पोल. So this all poles inside unit circle. So we are happy, causal and stable. All zeros inside unit circle. प्लस मैं लिख देता हूँ. अब हम क्या करेंगे, हम स्माइली तो हैं बट हम डबल स्माइली. समझ आ रही है? So this is a example of a minimum phases. क्लियर है बेटा?
जी सर Yes, बिल्कुल sir. क्लियर है। Okay, let's call this system as h of z. मैं सिस्टम को एच एफ डी कह देता हूँ और यहाँ से मैं इन्वर्स सिस्टम को डिफाइन करूँगा और इन्वर्स सिस्टम से फिर मैं एक डेफिनेशन निकालूंगा मिनिमम फेज सिस्टम की इन टर्म्स ऑफ इन्वर्स सिस्टम। Meanwhile, if you want to take a 5-minute break, so you can take a 5-minute break. फिर हम 20 minutes का lecture continue करेंगे. Do you want a break? यस सर वी वांट अ ब्रेक। ओके सर। Okay. So take a break 5 minutes. On my laptop it's 11:22. So 11 हम resume करते हैं 11:27 के ऊपर with inverse system के साथ। ठीक है? So Okay, sir. recording is on. So kindly avoid any irrelevant discussion.
जी बेटा, let's resume. 5 minutes over. Are you there? Okay, sir. Okay, so let me define inverse system first, and then I'll redefine minimum phase system in terms of an inverse system. So what is an inverse system? Inverse system are those systems that perform exactly opposite operation of a given system. Right? So operate जो आपके reverse systems होते हैं, they are performing exactly the opposite or inverse operation of a given system. So if we want to draw the inverse system of example given in this, in terms of pole zero plot, we can find inverse system by interchanging poles and zeros. हम अगर पोल को जीरो में कन्वर्ट कर दें, जीरो को पोल में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा इन्वर्स सिस्टम जनरेट हो जाएगा. समझ आ रही है? जी सर. So let's start from a very basic example. Example 1. हम दो सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं. This is HFC. Right. So let's first draw the system H of Z, and then we draw system H inverse of Z. So let's first draw H of Z, and here we draw H inverse of Z, inverse system. So let's draw a pole. हमारे पास for example एक system था like this, like this, like this, and there is a zero here. So what would be the inverse system? Inverse system would be like this. आपके पोल्स जो होंगे वो जीरोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और zeros, sorry, this is zero here and there is a pole. आ रही है समझ? Yes, sir. जी सर. चलें, अगर मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ, बहुत बेसिक सा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, मैथमेटिकली भी इसको देख लेते हैं, ग्राफिकली इट्स इजी. Let's take example 2. Insert. So H of Z is equal to 1 minus 0.5 Z inverse over 1 minus 0.8 Z inverse. This is your H of Z. आप H inverse of Z find out कर सकते हैं. जी सर, हो जाएगा. क्या आ जाएगा आपके पास? जो सर जो जीरोस हैं उनकी कन्वर्जन पोल्स में करके वापस आपकी आवाज बेटा कट रही है. सर आई वाज सेइंग कि अगर हम जीरोस को पोल्स में कन्वर्ट करके वापस डाल दें. Exactly. तो आपके पास ये आ जाएगा. Let me draw this system in example number 2
अगर हम एग्जांपल नंबर 1 2 को देखें तो हमारे पास जो सर सिंपल ये है ना, पोल 0 में चले गए और जीरो पोल पोल 0 में पे आ आ गए। जाता है। अगर हम ये देखें तो हमारे पास 0 कहाँ पे आ रहा था 0.5 पे, और पोल किधर आ रहा था 0.8 पे। तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया इन्वर्स सिस्टम, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स सिस्टम के अंदर देखें पोल 0 बन जाएगा और 0 पोल बन जाएगा। ठीक है, जी सर। so this is the concept of inverse system. Let's redefine minimum phase system in terms of minimum phase system in terms of inverse system. So let me first go to the next page. Minimum phase system in terms of inverse system. Minimum MPS are those systems whose inverse system is also causal and stable. मिनिमम फेज सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि जिनका इन्वर्स भी कॉजल एंड स्टेबल होता है। मिनिमम फेज सिस्टम्स आर दो सिस्टम व्हिच हैव a system with causal and stable inverse is known as minimum phase system. A causal and stable system with causal and stable inverse is called a minimum phase system. Let's define another definition. A causal and stable system with causal and stable inverse system is known as minimum phase system. क्लियर है बेटा? अब हम एक एग्जांपल अभी हम करके आए हैं, ये एग्जांपल हम इसकी दोबारा रिपीट कर देते हैं। एग्जांपल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, but in different context. Let me say this is causal and stable. This is causal and stable. This is also causal and stable. A causal and stable with causal and stable inverse. देखें एक सिस्टम है उसका इनवर्स भी causal and stable है, इस वजह से हम इसको मिनिमम फेज सिस्टम के। तो मिनिमम फेज सिस्टम की हमने डेफिनेशन देख ली। मिनिमम फेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके सारे पोल्स एंड जीरो यूनिट सर्कल के अंदर लाए जाएंगे, या मिनिमम फेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा, सेकंड डेफिनेशन, जिसका इनवर्स सिस्टम भी causal and stable होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि पोल जीरो में जाएंगे, जीरो पोल में जाएंगे तो अनस्टेबिलिटी का जो डेंजर है वो नहीं होगा मिनिमम फेज सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। लेट्स टेक वन काउंटर एग्जांपल। हम इसके काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। एंड पूर्वा requested me to give you idea about interleaver and CRC. I think you are using them in some of your project, right? लैब प्रोजेक्ट में जी लैब प्रोजेक्ट में आई थिंक यू आर यूजिंग that one. So the last 5 minutes I'll give you idea about interleaver and CRC. So let's take an example. हम इसमें करते हैं 1 - 2 0. अब देखें आपके पास, and let me write it as a counter example.
अब दिस इज कॉजल एंड स्टेबल, इसका इनवर्स निकालें। टू एट से 0.8 से रिप्लेस हो जाएगा और 2.8 के साथ। लेट्स कॉल इट INV। एग्री करते हैं सारे? इनवर्स सिस्टम यही होगा। यस सर। Okay, this is causal and stable. Let me draw this happy smiley here. Happy smiley here. So, is this a causal and stable system because pole lies inside the unit circle? So this is causal and stable. We have a smiley face. But what about this? It might be causal, but it's not stable. So we are said that because this is going outside unit circle. ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है बेटा? यस सर, जी सर। क्लियर है। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बेटा। ये फर्स्ट HFZ में जो क्या नाम है जीरोज हैं, टू जीनर्स, वो भी तो आउटसाइड नहीं जाएंगे? जीरो आउटसाइड जा रहा है, बट सिर्फ कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि उसके सिर्फ पोल यूनिट सर्कल के अंदर लाए करना है। लेकिन इनवर्स सिस्टम के कॉजल एंड स्टेबल होने के लिए उसके जीरोज भी यूनिट सर्कल के अंदर लाए करना। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो that's why we give a definition that a causal and stable system with causal and stable inverse is known as a minimum phase. I don't want to start a next topic because that is the decomposition of a given system into all paths and minimum phase system. That would I'll cover in the next class. So that's all for today's DSP lecture. So I'm just if you allow me, I want to discuss about interleaver and CRC now. I think anyone have idea about interleaver or CRC? नो सर, ये हमने कभी यूज नहीं किए, कभी पढ़ा नहीं इनके बारे में। Interleaver and CRC. CRC stands for cyclic redundancy check. Let me write it in full form. So this is with respect to your lab project. Right, so interleaver and CRC. So these both concepts are used for error detection in digital communication, right? Both concepts are used in error detection and correction process. Are you familiar with the term bit error rate? Are you ever heard about bit error rate? Are you familiar? No, sir. No Okay, sir. so what is bit error rate? So let me first bit error rate. Because in digital communication bit error rate is one important. जैसे आपका signal to noise ratio important है analog communication में, इसी तरह digital communication में of course throughput is important, but bit error rate is another important criteria. In very simple sense, अगर आपने 10 bits send किए हैं तो कितनी bits correctly receive हुई हैं, उसकी base के ऊपर आप bit error rate निकाल देते हैं. For example, if you send 100 bits and receive 98 bits correctly. अगर आपने
100 बिट सेंड किए हैं और रिसीव किए हैं 98 करेक्टली, 2 करप्ट हो गई हैं, तो इसका बिट एरर रेट कितना होगा? 2%। बिट एरर रेट इज 2/100। ठीक है। Yes, sir. So this is simple concept, very simple, very brief concept of bit error rate कि आपने जितनी bit send किया उसमें कितनी। And beta, it is normal procedure in any communication situation that whenever you send a data on a medium, कुछ ना कुछ उसके अंदर distortion, external noise की वजह से data corrupt हो जाता है, right? अब redundancy, CRC या error detection and correction का purpose क्या होता है? Error detection, purpose of error detection and correction। जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसका पर्पस ये है कि आपने एरर को डिटेक्ट करना है, टू डिटेक्ट पॉसिबल एरर्स इन द ट्रांसमिशन एट रिसीवर एंड। तो हम ये किधर कर रहे होते हैं? रिसीवर एंड पे हम कर रहे होते हैं डिटेक्शन को, बट ट्रांसमीटर एंड पे हमें क्या करना पड़ता है? हम क्या करते हैं, अगर हमने 100 बिट का डेटा सेंड करना है तो हम उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट सेंड कर रहे होते हैं। जैसे आई डोंट नो कि आपको कभी इत्तेफाक हुआ है कि अगर आपने कभी आपने डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का कोर्स पढ़ा हुआ है? No, sir. ओह स्ट्रेंज। अगर आपने डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का कोर्स पढ़ा होता तो प्रॉब्लली यू वुड नो कि फिजिकल लेयर के ऊपर एक पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर यूज होता है। वो आप अगर लैन केबल के ऊपर जो भी पैकेट जा रहा है तो आप जाके देख सकते हैं कि इसमें एक्चुअल डेटा कितना है, इसमें बाकी एक्स्ट्रा ओवरहेड कितने हैं। आईपी एड्रेस का तो सबको पता है। Yes, sir. तो जब आप डेटा सेंड कर रहे होते हैं तो डेटा के साथ साथ आपका आईपी एड्रेस भी जा रहा होता है, आईपी एड्रेस के साथ साथ आपका मैक एड्रेस भी जा रहा होता है। तो आईपी एड्रेस कितना होता है? 32 बिट्स का। आईपी वर्जन 4 की बात करें, ऐसे ही है। Yes, sir. तो इसका मतलब यह है कि चलें हम बिल्कुल नॉर्मल साम लेते हैं कि जब भी आप एक पैकेट फॉर एग्जांपल आपने 100 बिट सेंड करनी है तो उसके साथ आपका एड्रेस भी जा रहा होता है 32 बिट का। जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह देखते हैं, कभी किसी ने लेटर चले ईमेल, लेटर तो पुराना हो गया, ईमेल लिखते हैं तो आपके मैसेज के साथ साथ आपका ईमेल एड्रेस भी जा रहा होता है, ऐसे ही जा रहा होता है ना, जा रहा होता है ना बेटा? जी सर, बिल्कुल सर। तो पुराने ज़माने में सर जब हम लेटर लिखते थे तो लेटर एक्चुअल जो हम लेटर लिखते थे उसके साथ एनवलप में एड्रेस लिख के वो सेंड करते थे। तो इट्स मीन कि जब आपने कोई भी अपना मैसेज फॉरवर्ड करना है, भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ना सिर्फ आपका मैसेज जाएगा बल्कि उसका एड्रेस भी जाएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाएगी, राइट? अब जो आपका एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का मैकेनिज्म है, ये हम क्या करते हैं, हमने अगर 100 बिट्स भेजनी है तो लेट्स अज्यूम हम 100 की बजाय क्या भेजते हैं, हम 200 बिट्स भेजते हैं या हम 150 बिट्स भेजते हैं। एक्स्ट्रा जो हम 50 बिट्स भेजते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है कि हम ये चेक कर सकेंगे यार जो हम 100 बिट्स भेज रहे हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आया। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी फ़ाइल में फॉर एग्जांपल आपकी फ़ाइल का साइज़ था 1 मिलियन बिट्स, अगर उसमें से जैसे पीडीएफ फाइल है, इट्स वेरी सेंसिटिव, अगर उसमें से 1-2 बिट्स भी करप्ट होंगी तो क्या होगा, वो रिसीवर एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी पूरी फाइल ओपन ही नहीं होती, वो आपको दोबारा से रीसेंड करनी पड़ती। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जो CRC या इंटरलीवर, ये फिनोमेना हम यूज़ करते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए। CRC इज प्रोमिनेंट। आपने कभी पैरिटी चेक लगाया? पैरिटी किसी ने DLD के कोर्स में पैरिटी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, आर यू फैमिलियर विद इवन एंड ऑड पैरिटी? तो उसमें भी आप देखेंगे अगर आपने 3 बिट्स हैं तो 3 बिट्स के बजाय आप 4 बिट एक पैरिटी बिट भी सेंड कर रहे थे, और वो पैरिटी बिट आपको बता देती है कि आपने एरर आपके सिग्नल में अकर हुआ है या नहीं हुआ आपके डेटा के अंदर, राइट? सो इट्स टू द पॉसिबल एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। पर्पज इसका ये है कि आपने जो डेटा ट्रांसमिट किया है क्या उसमें जब वो चैनल के ऊपर से पास हुआ उसकी वजह से या एक्सटर्नल नॉइज की वजह से कोई बिट करप्ट तो नहीं होगी, ठीक है ना? बिट एरर रेट, और आप इसको इंटरलिंक करके देखें तो अगर आपने 100 बिट भेजी है तो कोई बिट करप्ट तो नहीं होगी। अब डिजिटल कम्युनिकेशन में बिट करप्ट होने का मतलब यह है कि 1 0 हो जाएगा या 0 1 हो जाएगा। तो अगर आपको सिंपल उसकी लोकेशन पता चल जाए कि फॉर एग्जांपल अगर 100 बिट्स हैं तो 70 बिट जो है वो करप्ट हो गया,
तो आप जाके देखेंगे कि अगर वो 0 हुई तो 1 कर देंगे, 1 हुई तो 0 कर देंगे। तो दैट इज बेसिकली द करेक्शन। डिटेक्शन क्या है कि आपको पता चल रहा है कि 70 बिट में एरर आया, और करेक्शन क्या है कि आप उसको जो है रिवर्स कर दें। अब अभी जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है इसके अंदर नंबर ऑफ आपकी जो एरर डिटेक्शन कोड यूज हो रहे हैं, और उन एरर डिटेक्शन कोड में से एक जो कोड है वो आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है या CRC। समझ आ रही है? वैसे तो हम डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर कन्वोल्यूशन इंकोडर और बिटरबी डिकोडर ये हम यूज कर रहे होते हैं, और ये कन्वोल्यूशन इंकोडर भी आपका पॉलिनोमियल के ऊपर बेस कर रहा है, और आपका जो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है CRC ये भी पॉलिनोमियल के ऊपर बेस कर। ठीक है बेटा, CRC की समझ आ गई? यस सर। आप दो टर्म आपकी यूज होती हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास तो नहीं है? नो सर, अभी नहीं है सर। चलें, I'll take okay, I'll take 5 minutes. So सिंगल बिट एरर दो टर्म आपकी यूज होंगे, सिंगल बिट एरर और आपके पास बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर जैसे नाम से क्लियर है कि सिंगल बिट, सो अगर आपकी एक बिट करप्ट होती है तो दिस इज अ सिंगल बिट एरर, एंड दैट इज क्वाइट इजी टू हैंडल द एरर, बिकॉज आपने सिंपल बिट को लोकेट किया, उसको रिवर्स कर दिया, आपका मसला हल हो। लेकिन आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है बर्स्ट एरर। बर्स्ट का मतलब है ग्रुप ऑफ बिट्स, एरर इन अ ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है, अगर आपकी ग्रुप ऑफ बिट्स में एरर आ जाए तो फिर जो एरर डिटेक्शन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, और इवन करेक्शन का प्रोसेस तो वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? सिंगल बिट एरर वर्सेस बर्स्ट एरर और मल्टीपल बिट एरर। यस सर। ऐसे ही है ना, देखिए एरर तो जब अगर होगा तो वो तो किसी वजह से भी हो सकता है। सो नॉर्मली आपके लिए जो बर्स्ट एरर है दैट इज लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स टू हैंडल। ठीक है बेटा, अब इंटरलीवर का रोल देखें। ये तो सबको पता चल गया कि CRC का रोल क्या है। CRC का रोल ये है कि आपने एरर को डिटेक्ट करना है। ये सिर्फ एरर डिटेक्शन स्कीम है, करेक्शन नहीं है, राइट। और इंटरलीवर की आप अंडरस्टैंडिंग आपने यहाँ से लेनी है सिंगल और बर्स्ट एरर से। इंटरलीवर इज यूज टू हैंडल बर्स्ट एरर। ठीक है बेटा, अब दोबारा से मुझे थोड़ा सा डिफाइन करने दें। हमने स्टार्ट किया था साइक्लिक CRC और इंटरलीवर, और हमने कहा ये दोनों आपके एरर डिटेक्शन करेक्शन प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल होते हैं। फिर हमने डिफाइन किया बिट एरर रेट को। बिट एरर रेट को हमने बहुत क्रूड लेवल पे डिफाइन किया कि अगर आप 100 बिट्स भेजते हैं तो उसमें से कितनी बिट्स करप्ट होती हैं, दैट इज बेसिकली योर बिट एरर रेट, राइट। डन, सो दैट इज बेसिकली द बिट एरर रेट। फिर हमने कहा कि पर्पस क्या है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का, ताकि हम पॉसिबल एरर जो हमारा डेटा चैनल से पास होकर रिसीवर के ऊपर जा रहा है तो क्या चैनल ने या एक्सटर्नल लाइज ने उसको चेंज तो नहीं कर दिया। अगर चेंज कर दिया तो हमने उसको डिटेक्ट भी करना है और फिर हमने करेक्ट भी करना है। तो जो मॉडर्न स्कीम्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कन्वोल्यूशन इनकोडर, विटरबी डिकोडर, तो अगर हम वो यूज करें तो हम ना सिर्फ डिटेक्ट कर लेते हैं बल्कि करेक्ट भी कर लेते हैं। CRC आपका यूज होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सिर्फ एरर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब एरर आपके दो तरह से होते हैं, एक सिंगल बिट एरर है, एक आपके पास बर्स्ट एरर है। सिंगल बिट एरर को हैंडल करना है रिलेटिवली इजी, लेकिन बर्स्ट एरर को हैंडल करना जो है वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। और इंटरलीवर की ब्यूटी क्या है, इंटरलीवर क्या करता है, ये बर्स्ट एरर को जो क्या करता है वो सिंप्लीफाई करता है। ये बर्स्ट एरर को सिंगल ट्राई करता है कि वो सिंगल बिट एरर में कन्वर्ट कर दे। ये कैसे करता है, पहले हम इंटरलीवर को देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे आपका जो CRC है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरलीवर। और इंटरलीवर में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट डेटा ले लेते हैं। So let me take example. So let's take 4 data 1 0 0 1 1
0 1. So let's assume this is user 1 का डेटा, u1 का डेटा ये जा रहा है, उसके बाद दूसरे यूजर का डेटा है 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 और 1 1 double 0 double. Let's make it triple 1 0 or 1 1 and 0 0. And third जो आपके पास यूजर है that have a data user 3 1 0 1 double 0 and 1 0 1. आपके पास यूजर 4 है, उसका जो डेटा आपने सेंड करना है दैट इज 1 1 1 1, 4 जीरोस हैं और फिर आपके पास 4 1s हैं और 4 जीरो. ठीक है, अब होना तो ये चाहिए कि आप इसको बिल्कुल सीधी तरह सेंड करें, लेकिन इंटरलीवर क्या करेगा? लेट मी, यहाँ पे आपका इंटरलीवर का रोल आएगा. तो इंटरलीवर क्या करेगा? वो इन बिट्स को कैसे सेंड करेगा? वो इसको पहले ये बिट्स उठाएगा, सबकी पहली बिट्स उठाएगा, फिर सेकंड बिट उठाएगा, फिर थर्ड बिट उठाएगा, ये इस तरह से सेंड करेगा. वैसे देखें, आपको जो नॉर्मल ट्रांसमिशन हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए, पहले इसका डेटा सारा सेंड हो 1 0 0 1 1 1 0 1, फिर नेक्स्ट क्या आ जाए आपके पास? चलिए मैं नॉर्मल लिख देता हूँ. नॉर्मल के केस में क्या होना चाहिए? 1 0 0 1 1 0 1, फिर आपके पास आ जाना चाहिए 0 0 1 0 1 1 0 0, फिर आपके पास आ जाना चाहिए 1 0 1 0 1 0 1, और फिर आखिर में 4 1 और 4 0. अगर हम नॉर्मल ट्रांसमिशन करें तो हमारे पास ये होना चाहिए. लेकिन इंटरलीवर क्या करता है? इंटरलीवर इसको ट्रांसमिट करेगा 1 0 1 1. तो ये क्या करेगा? पहले इस कॉलम को उठाएगा, इसको ट्रांसमिट करेगा, फिर नेक्स्ट कॉलम उठाएगा 0 0 0 1, उसके बाद नेक्स्ट उठा लेगा 1 0 1 और 1 0 1, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? हमने सेकंड कॉलम उठा लिया सारा, यस 4 1. अब नेक्स्ट आ जाएगा 0 ट्रिपल 1, ऐसे ही है बेटा, 0 ट्रिपल 1, फिर क्या आ जाएगा? 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर आ जाएगा 1 1 ट्रिपल 1 0 ट्रिपल 1 0, फिर लास्ट में 4 जीरोस और फिर आखिर कॉलम 1 0 1 0. यही आएगा बेटा, यही आएगा बेटा. अब लेट्स अज्यूम हम करते हैं कि जो बर्स्ट एरर आपके पास आ जाता है, एक्चुअली ये होना चाहिए था 1 1 0 0. अब हम अगली 4 बिट्स ले लेते हैं. लेट्स अज्यूम कि इन 4 बिट्स में एरर आ जाता है और 4 बिट का एरर है, तो दिस इज बर्स्ट एरर. इन 4 बिट्स में बर्स्ट एरर आ जाता है और लेट्स अज्यूम ये बिट्स करप्ट हो जाती हैं, ये 0 1 0 1 के बजाय 1 0 1 0 हो जाता है. चैनल के ऊपर हमने ट्रांसमिट किया तो ये बर्स्ट एरर आ गया. अब हम रिसीवर एंड पे जाके देखते हैं कि क्या होगा. R1 R2 R3 R4. इंटरलीवर के केस में आप देखेंगे ये बर्स्ट एरर है, लेकिन ये सिंगल बिट एरर में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? यहाँ पे देखिए, आपके पास आ जाएगा 1 0, फिर मैं यहाँ पे रेड कलर में 1 लिखता हूँ. अब कोड वर्ड आपके पास क्या आएगा? देखें, आपने 4 बिट्स को लैदा करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? पहले ये बिट उठाएंगे, फिर 3 को छोड़ेंगे, फिर आपके पास ये बिट्स उठाएंगे. ऐसे ही होगा. तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 1 1 1 1 0 1, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 0 0, सॉरी लेट मी मार्क. तो आपका एरर आ रहा है, मैं उसको सिर्फ रेड कलर में लिखूंगा, बाकी मैं सारा आपको नॉर्मल में लिख देता हूँ. Oh shit, this is R4. Let me write in red color with the error, sorry,
first one 1 0, then the error is 1, then I have normal 1 1 1 0 1, and then I'll take the next one 0 0, then again I have a red 0, then 0 1 1 0 0, next one is 1, again error in this bit 1, then normal 1 double 0 1 0 1, and then I'll take it normal 1 0 1 1 1 1 triple 0 4 tetra 0. अब आप if you see here, so आपके पास जो burst error था, अब ये split हो गया है among 4 users. ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है. यस सर, वो 4 बिट So it will become a single bit error. So normally we can say that जो आपका interleaver है, what it will do, it will convert your burst error into the single bit error. अगर आप interleaver use नहीं करेंगे तो probably आपके पास क्या होगा, burst error आएगा. burst error के लिए फिर आपको जो scheme लगानी पड़ेगी, that would be too complex. उसको simplify करने के लिए in normal digital communication you are probably using the interleaver. So that is the basic purpose for using your interleaver process. Second, about CRC, cyclic redundancy check. इसमें what we will try to do, हम एक polynomial generate करते हैं और उस polynomial को हम divide कर देते हैं. जो हमारा actual data होता है हम उस polynomial से divide करके और फिर जो remainder बचता है वो हम actual data के साथ attach करके send करते हैं. Right? So let's assume CRC main purpose is to detect the errors. So it has generator polynomial. Polynomial से सारे familiar हैं. अगर मैं लिखूं x square, let's assume, let me write. If I write x cube x4 plus x plus 1, can you write its mathematical expression? अगर मैं इसको bit pattern में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ. Normally what we'll try to do, we'll try to write the all parts like x4 x3 x2 x1 and x0. राइट. हमारे केस में देखिए हमारे पास क्या है, x4 है तो दिस इज 1, x3 नहीं है 0, x2 भी नहीं है 0, x1 हमारे पास 1 है और नॉर्मली हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ रही है. तो हमारे पास जो जनरेटर पॉलिनोमियल होगा gx हमारे पास आ जाएगा, वो x के x4 प्लस x प्लस 1 और इसका डिजिटल जो हमारे पास वर्जन निकलेगा वो हमारे पास आ रहा है 10011. Let's assume our data. Let's assume हमारा जो डेटा जो हमने सेंड करना है that is like this. Data is 1011011 1. हमारे पास 8 बिट का फॉर एग्जांपल ये डेटा. हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे दिस डेटा को with gx. राइट. सो आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. तो व्हाट यू विल डू 10110111, आप इसको डिवाइड करेंगे 10011 के साथ. राइट. तो आपका आखिर में आ जाएगा RX रिमाइंडर. तो आपने सेंड क्या करना है, मैं आपको रफली हिंट दे रहा हूँ. व्हाट यू विल ट्रांसमिट, what you will transmit data plus remainder RX.
राइट। सो आप डेटा और रिमाइंडर को सेंड करेंगे और रिसीवर एंड पे आप क्या करेंगे, रिसीवर पे आप इसी पूरे कंप्लीट को डेटा प्लस रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे इस डिवाइजर के साथ, तो आपके पास मान 0011 मान पोलिनोमियल के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर तो आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है कि आपके डेटा में इफ आंसर इज 0 सो यू आर हैप्पी, इट्स मीन दैट देयर इज नो करप्ट डेटा इन योर सिस्टम। लेकिन अगर आपका डिवाइजर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर उस केस में there is some error in your system. So that's how your CRC would work. This is just a brief introduction about CRC. I'll try to give a complete example in the next lecture. And I would suggest you to go to the YouTube and try to first learn the basics of CRC. And inshallah, in next lecture, I'll give an example of CRC as well. Okay, but this is just a brief overview of CRC and interleaving. Any question? Any confusion? No, sir. No, sir. Okay, let me stop the recording.